Our first team will be Indian Stars with our icon player, Mr. Irfan Pathan, and I would love to welcome him on the floor with a huge round of applause, everybody. Can it be a little more louder? एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, everybody. Our second team will be Sri Lankan Lions with the icon player Upul Taranga here. एक बार जोरदार तालियां हो जाए everybody. Let's welcome our icon player. Our next team is Afghanistan Pathans with icon player of Asghar Afghan. Can we have a huge round of applause, everybody? We have our fourth team here, Bangladesh Tigers, with our icon player. So due to some delay, due to some weather issues, our icon player is not here, but he sent his best wishes for the league. Our fifth team is Pakistan Stars with our icon player Mohammad Irfan. He's also not here due to some issues, but he sent his best wishes. Thank you so very much. Now, who is excited to see the grand trophy of this amazing league here? We're gonna do the unveil of our Asian Legends League trophy. So for that, I would request Mr. Chetan Sharma ji to kindly come in front and do the unveil along with all the icon players here. And now right after this, we have individual jerseys of every team. जैसा कि सभी को पता है, हर क्रिकेट मैच के लिए हर individual jerseys होती है. Very much, sir. You may take your place. And now I would love to hand over the mic to our media person who all are here to cover this amazing event. Question answer round हम लोग start कर रहे हैं. Whatever questions you have according to this league, for this league, you may ask to our icon players, our former players here. गुड आफ्टरनून. कहते हैं इरफान पठान सामने बैठा हो और मैं कैसे नहीं बोल सकता हूँ. छोटा भाई पहले बोलेगा, बड़ा भाई बाद में बोलेगा. इरफान से क्वेश्चन अगर कोई आपका है, क्योंकि मेरे साथ तो कोई ज़्यादा क्वेश्चंस आजकल नहीं है, तो इरफान है, असगर है, सब लोग हम लोग हैं. एनीथिंग यू वांट टू आस्क इज हियर, तो विल बी हैप्पी टू आंसर यू गाइस. Irfan, hi. Just wanted to ask, you've been playing in a lot of leagues like these. Tell us a little about the idea behind playing this Asian Legends League for Indian Royals. Look, it's first of all good to be playing on the field, because since last 6 years I have hold mic in my hands, and I play a different league, which is like a talking league. Being a broadcaster, being a commentator, is a different fun because you're still connected with cricket. But our first love is always playing and being on the field, and spending time with our teammates, which we have spent a lot of time in many years. So obviously bring back a lot of good memories as well. Played a lot of leagues in last 2 years.
after my retirement, I never thought I'm going to be playing so many leagues. And talking about this league particularly, this is the first event, and hopefully, if everything goes well, I'm looking forward to play in this league with quite a few wonderful teammates, but at the same time competing with my fellow cricketers with whom against I played a lot of cricket. Opul Taranga, I played a lot of cricket against him since under 19 days. Played against him in the World Cups, in Asia Cups, played international cricket against him as well. My brother from Afghanistan, I played against him as well in the league last year. Had a lot of fun here, had a wonderful career as well. So it's always great to be just going out there and competing, even in this age after retirement, because it just gives you a different thrill and excitement. But at the same time, a lot of fans get a lot of good viewing as well, because they have followed certain cricketers for so many years, maybe more than a decade, and when they play and they try to give their best despite being retired, it's always fun to watch. I watch the leagues as well where the cricketers have retired, but if they try to give their best, it's a lot of fun to watch. So I'm excited. Let's see if everything goes well. Looking forward to it next month. चेतन सर से एक सवाल है। चेतन सर सीधा एकदम यहाँ वैभव, आपने कहा आपसे सवाल नहीं पूछे जाएगा ज़्यादा, तो मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो लीग है, क्या इसका फॉर्मेट जो बाकी लीग्स हैं उनसे अलग रहने वाला है, और जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं तो कौन कौन से और क्रिकेटर्स इस लीग में आ सकते हैं? साथ ही एक थोड़ा सा और इंडियन क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन, बहुत सवाल है कि क्या रोहित और विराट को T20 वर्ल्ड कप खेलना चाहिए कि नहीं, और साथ ही अगर आज आप चयनकर्ता होते तो क्या आप इनको टीम में चुनते, और साथ ही कप्तान कौन होता आपके लिए? वैभव बोला इतने क्वेश्चन, आपने बोला सवाल नहीं पूछ रहे आपसे लोग। इतने सवाल बहुत पूछ रहे हैं, आंसर नहीं कर रहा आजकल। देखिए, मैं इस लीग के ऊपर ही बात करूंगा कि वैभव के साथ मैंने बहुत साल काम किया है। मुझे मालूम है वो इतनी जगह फंसाने की कोशिश करेगा, और मैंने इतना काम उसके साथ किया, उसको मालूम है मैं फंसूंगा नहीं। जहाँ नहीं फंसना चाहिए था वहाँ मैं फंस गया था एक्चुअली। तो 20 साल के करियर के बाद अगर तुम फंस जाओ तो थोड़ा दुख लगता है। तो ये देखिए, ये फॉर्मेट क्या है, ये बेसिकली कंट्री फॉर्मेट्स है, और दूसरी मुझे नहीं मालूम ना, मैं ज़्यादा इतना फॉलो करता हूँ। ये जब मेरी बात हुई सबसे, तो मेरा ये था कि हम एज ए कंट्री रिप्रेजेंट जब करते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो वो जितने पुराने क्रिकेटर्स हैं, एक्स क्रिकेटर्स हैं, इरफान तो एक्स लगता ही नहीं। अभी मैं इसको मिला, मैं कहा मेरे छोटे भाई तुझे, मुझे लगता है इंडिया खेल जानी चाहिए, जितनी फिटनेस है इसकी। तो मज़ा आता है कि वो पुराने लोगों के साथ एज ए कंट्री जब आप खेलेंगे इस लीग में आके। और ये लीग डेफिनेटली, जैसे हमने कहा कि ये मार्च में शुरू हो रही है, कोशिश यही है कि इसको ऐसे टाइम पे ख़त्म कर दिया जाए कि जो कमिटमेंट्स हैं सब क्रिकेटर्स की, वो कमिटमेंट्स पूरी हो। तो ये कंट्री वाइज है वैभव, तो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। जब कंट्री वाइज खेलते हैं ना, तो एक थोड़ा जज्बा भी आपको रहता है, आप एक प्राइड के साथ खेलते हैं। तो मेरा हर समय ये मानना है कि कंट्री के लिए जब आप खेलते हैं, एक प्राइड माना जाए। बेशक आप रिटायर हो गए हो तो, लेकिन प्राइड एक रहती है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। इस लीग का इसके ऊपर था, तो इसलिए हमने ये सोचा कि लेट्स स्टार्ट दिस, कि और डिफरेंट चल रही हैं, लेकिन यहाँ पर उन लोगों को आपस में खेलना चाहिए। जैसे इरफान ने कहा कि हमें खुशी होगी अंडर 19 डेज से उपल के साथ खेलते आए, तो आपको वापस खेलने का मौका मिलेगा। थैंक यू। इरफान भाई, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि इसमें बहुत सारे जो है इंडिया के प्लेयर्स, पाकिस्तान के प्लेयर्स, बांग्लादेश, और आप हमेशा पाकिस्तान के अगेंस्ट अच्छा कम्पीट किए, हैट्रिक है, काफ़ी अच्छे अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं। तो अगेन जब इसमें इंडिया पाकिस्तान के जो मैचेस होंगे, आपको लगता है उसका एक अलग से स्पेशल हाइप होगा? बिकॉज अगेन वो फॉर्मल जो प्लेयर्स जो पहले आपस में भिड़ते थे, इंडिया पाकिस्तान की जो एक्साइटमेंट होता था, तो वो खासकर यहाँ पर इस लीग में देखने को मिलेगा? हाँ, बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इंडिया पाकिस्तान राइवलरी तो स्पेशल होती है, किसी भी लेवल पे हो जाए, चाहे वो इंटरनेशनल क्रिकेटर हो या फिर वो रिटायर इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हो। आई थिंक उससे बढ़िया सेटिस्फैक्शन नहीं है अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना। और स्पेशल जो राइवलरीज रहती है, मेरा स्पेशल ये हमेशा रहा है कि दो कंट्री के सामने जब मैं खेला हूँ, उसमें मैंने बड़ी शिद्दत से मेहनत करके परफॉर्मेंस करने की कोशिश की, और मज़ा भी बड़ा आया। एक ऑस्ट्रेलिया, एक पाकिस्तान,
इनके अगेंस्ट खेलने में बड़ा मज़ा आया। तो वो पुराने दिन मुझे लगता है फिर से याद आ जाएंगे जब ये मौका मिलेगा फिर से। Hero from the week. उठ जाओ। मुझे ये जानना है कि जो ये लीग है, आप इसको कैसे स्लॉट करेंगे? आप इतने बिजी रहते हैं एज अ कोच, एज अ प्लेयर, आप कैसे इसको स्लॉट करेंगे और कौन से चैनल पे स्लॉट करेंगे? अब देखिए, ये बात तो सच है कि जब मैं क्रिकेट खेलता था तब मेरे पास ज़्यादा वक्त था। अब जब रिटायर हो गया हूँ तो बहुत सारी चीज़ें करने का मौका मिलता है और आप एक्सप्लोर भी करते हैं। कोचिंग हो गई, खेलना हो गया, कमेंट्री हो गई। अभी तो खैर 2 बच्चे भी हैं तो उसमें भी काफ़ी बिजी रहता हूँ मैं। लेकिन ये स्लॉट की आपने बात की, ये बहुत अच्छा स्लॉट है। टाइमिंग इसलिए है कि IPL से पहले ये है जहाँ पे ज़्यादा जो थोड़ा वक्त आता है, पहले 1-2 हफ्ते का, वहाँ पे ब्रेक होता है। और ये टूर्नामेंट आप अगर देखेंगे तो 2 हफ्ते से कम वक्त में ख़त्म हो जाएगी। तो ज़्यादा मुश्किल होनी नहीं चाहिए। मुश्किल प्रिपरेशन में होगी कि ये जब एक बार पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा कि ये टूर्नामेंट हो रहा है, तो वो जो प्रिपरेशन रहेगी, प्रैक्टिस करना, थोड़ी बॉडी चलाना, बॉलिंग करना, बैटिंग करना, वो थोड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ पे थोड़ी जान लगानी पड़ेगी। बाकी उसके अलावा जब टूर्नामेंट होगा और जब हम मैचेस खेल रहे होंगे तब इतना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, क्योंकि वो वक्त, बॉडी भी चल जाती है, वक्त भी निकल जाता है और सिर्फ 2 हफ्ते से कम का वक्त है, तो ज़्यादा दिक्कत आएगी नहीं। Do we have any more questions? Yes, my question is for Asghar. Asghar, who are going to be your teammates? टीममेट्स तो हमारे जो है सारे फॉर्मर क्रिकेटर ही है। जैसे समीला शिनवारी हो गया, दौलत अदरान हो गया, करीम सादिक हो गया, नवरोज़ मंगल हो गया। हमारे प्लेयर जो है ना वो भी खेलते हैं, डोमेस्टिक वगैरह खेलते हैं। अफगानिस्तान में जितने T20 टूर्नामेंट्स है वो सब खेलते हैं। तो इंशाल्लाह टीम हमारी भी बुरी नहीं है और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस टूर्नामेंट के लिए। क्योंकि जैसे इरफान भाई ने बोला कि आप जब इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो अपनी कंट्री के लिए, लीग तो आप खेलते हो, किसी फ्रेंचाइज के लिए खेलते हो, तो वहाँ वो फीलिंग इतनी नहीं होती जितना आप कंट्री के लिए खेलते हो। स्पेशली अब जिसमें अफगानिस्तान की टीम, अफगानिस्तान का नाम आता है, तो एक अदर फीलिंग है। हॉनेस्टली अब मैं जो सोच रहा हूँ ना, मुझे वो पुराने दिन याद आ रहे हैं। पहले तो मैं वर्ल्ड स्पोर्ट ग्रुप का बहुत शुक्रिया अदा करके उसने इस तरह प्लेटफॉर्म बनाया, इस तरह इसने एक सोच बनाई है, एक टूर्नामेंट इस तरह बनाया। जैसे अब ये टूर्नामेंट एशियन लेजेंड लीग, मेरे ख्याल में ये एशिया कप है लेजेंड्स का, तो काफ़ी कंपटीशन होगी और काफ़ी अच्छा लगेगा खेलते हुए। और हर टीम को ये ख्वाहिश होगी ये मैच जीते, क्योंकि आजकल अफगानिस्तान में आप देख रहे हो काफ़ी कंपटीशन उसका आ रहा है मैचेस में, स्पेशली जब वो बड़ी टीम के साथ खेलती है। तो मेरे ख्याल में एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है हमारे टीम प्लेयर्स के लिए, जो फार्मर क्रिकेटर है, जो काफ़ी टाइम से नहीं खेले। तो जब हॉनेस्टली जब मैं आ रहा था इंडिया, तो वो लोग बहुत खुश थे इस चीज़ के लिए कि हम दोबारा अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और बहुत शुक्रिया अदा करते हैं लीग वालों का, ऑनर्स का स्पेशली, कि किस तरह लोगों ने एक प्लेटफॉर्म बनाए, तो बहुत अच्छा लगेगा। इरफान भाई, लक्ष्य दिस साइड फ्रॉम स्पोर्ट्स यारी। 2 क्वेश्चंस हैं आपसे, ऑल अबाउट दिस लीग ओनली। सबसे पहला सर ये रहेगा कि आपके साथ और कौन से बड़े इंडियन स्टार्स हमें देखने को मिलेंगे। और सर दूसरा क्वेश्चन, पहले इसका दे दो फिर अगला पूछ लेता हूँ, कौन से प्लेयर्स होंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम कोशिश यही करेंगे सबसे बढ़िया टीम बनाएं। जी सर। तो अभी उसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ नहीं है, उसका प्रोसेस अब स्टार्ट होगा। कुछ चीज़ें हैं जो ऑर्गेनाइजर्स आपको बताएंगे, वो जैसे क्लियर होगी तो ज़रूर हम कोशिश करेंगे कि इंडिया की एक बेहतरीन टीम बने। और वही लड़के होंगे। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट ऐसा है कि ये इंडिया का नाम इसमें आता है, इसका मतलब जो लड़के इंडिया खेले, जो रिप्रेजेंट किया है और रिटायर हो चुके हैं, वो खेलेंगे। तो उस लिहाज से आपके पास अभी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिसमें से 6-7 खिलाड़ी तो आपको हर साल खेलते हुए नज़र आते ही हैं। तो उम्मीद ये रही कि उसमें से क्रीम लड़कों को खिलाया जाए और एक अच्छी टीम बनाई जाए। बिकॉज इवेंचुअली मुझे याद है जब रोड सेफ्टी का मैच हुआ था, जब पहली बार हमें याद है कोविड शुरू होने से पहले हम लोग ब्रेबोन स्टेडियम में थे, वहाँ पे रोड सेफ्टी सचिन पाजी की वजह से हुआ था और एक अच्छे मैसेज की वजह से हुआ था वो टूर्नामेंट, जहाँ पे सारे खिलाड़ी आए हुए थे और CCI का मैदान था मुझे याद है, और वहाँ पे सब थोड़े मस्ती मजाक के मूड में थे। सचिन पाजी वो दूर से ना नोटिस कर रहे थे कि यार ये सब थोड़ा हल्का ले रहे हैं इस बात को, क्योंकि
मैच तो खेलना है आपको, जान लगानी है, इंडिया का नाम है, तो आपको कुछ बात करनी पड़ेगी। तो बाजी आए, एक मीटिंग ली और मीटिंग में सिर्फ एक ही बात की कि जब आप कल मैच खेलोगे, आज आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सारे रिलैक्स है, रिलैक्स रहिए, कोई बात नहीं है, रिटायर हो चुके हैं हम सब, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आप जब जर्सी पहनेंगे तो आपकी जर्सी पे ना इंडिया लेजेंड्स लिखा होगा, तो इंडिया का नाम होगा। तो आपको जान लगानी है, मेहनत करनी है और कोशिश करना है आपको जीतना है। और क्योंकि कल जो मैच होगा वहाँ पे 50-60 हज़ार लोग आएंगे और बाकायदा जब मैच शुरू हुआ तो 50-60 हज़ार लोग थे वहाँ पे मैच देखने के लिए। अब जब ऐसा माहौल जब बनता है क्रिकेट के लिए तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, एक तो क्रिकेट के लिए और दूसरा जब इंडिया का नाम लगता है कि आप एक बेहतरीन टीम बनाएं और पूरी जान लगाएं। तो उम्मीद ये रहेगी कि हम एक अच्छी टीम बनाएं। और इरफान भाई, दूसरा सवाल ये कि 12 साल हो चुके हैं इरफान पठान को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हुए देखे हुए। अभी आपने खुद ही कहा 2 टीमें आपको सबसे पसंद थी, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया। पाकिस्तान फिर सामने होगा, एक ऐसा खिलाड़ी जो 12 साल पहले रह गया हो, किसी को कुछ मतलब कहते ना इंडिया पाकिस्तान सबसे बड़ी राइवलरी है, एक ऐसा प्लेयर जिसको फेस करने के लिए आप एक्साइटेड हैं, कुछ अधूरा रह गया था वो पूरा करना है, कौन सा वो एक प्लेयर होगा? देखिए, वो जो टीम थी ना पाकिस्तान की, बड़ी मजबूत टीम हुआ करती थी। तो उस वक्त उस दौर में अभी अगर कंपेयर करें जो क्वालिटी जो प्लेयर्स थे वो अलग क्वालिटी के प्लेयर्स थे। तो उस वक्त तो कोई ऐसा बचा नहीं था। हाँ, लेकिन एक दिली तमन्ना थी कि मैं वसीम अकरम को ज़रूर फेस करूँ। अब वो शायद हो नहीं पाएगा कभी, तो वो तमन्ना दिल में ही रह जाएगी। लेकिन उसके अलावा मुझे लगता है कि जब मैं खेला पाकिस्तान के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया का जो आपने नाम लिया, भाई बड़ी तगड़ी टीम थी, बड़ी पिटाई करते थे वो। हेडन से लेके गिलक्रिस्ट से लेके पॉन्टिंग से लेके साइमंड से लेके वो सारे प्लेयर निकाल लो आप, वो बड़े खतरनाक प्लेयर थे। लेकिन वही पाकिस्तान के अगर प्लेयर की आप बात करें तो मोहम्मद यूसुफ थे, यूनुस खान थे, इंजमाम उल हक थे, अब्दुल रज़ाक अपने टाइम के एक अहेड खतरनाक प्लेयर थे। बॉलिंग में उनके पास वो शोएब अख्तर हुआ करते थे, मोहम्मद आसिफ, उमर गुल, ऐसे गेंदबाज होते थे। सईद अजमल आए बाद में। तो ये बहुत अच्छी तगड़ी टीम हुआ करती थी। अगर उनमें से ही ज़्यादातर खिलाड़ियों का सामना करने को मिल जाए तो फिर चैलेंज में बड़ा मज़ा आएगा। Hi Upal sir, this is Kaushik from India.com. My question to you is about how excited are you to play in this tournament, having played the LLC, and are we going to see the likes of Muralidharan or Dilshan playing for Sri Lankan Lions in this league? Firstly, we are looking forward to, like Irfan said, like we played since under 19 and played against the national team, and we played few Legends tournament as well. So as a former player, and I'm also looking forward to it. Yeah, we will see first who are the players we can get in. So hopefully we will try to get our best out of it. So this will be the last question. Right after one question answer will be done. Hi Irfan sir, this is Namrata Vijay from TV9 Digital. My question to you is related to the ongoing test series between India and England. Do you think whether Shreyas Iyer or Shubman Gill should be dropped for the second test? Look, obviously there are 2 new guys have come in this side, right? Rajat Patidar and Sarfraz Khan, they've just got selected in the team. Obviously they'll be pushing to play in the playing 11. But right now the only issue with the management is facing, they don't have Virat Kohli's service at the moment. KL Rahul just got injured. Obviously Rishabh Pant is recovering. So as far as the test team is concerned, Ravindra Jadeja got injured as well. When there's so many players who are so experienced, they are match winner themselves, are not available due to personal reason or injuries. यार बड़ा मुश्किल हो जाता है किसी भी मैनेजमेंट के लिए कि कोई नया लड़का आए और उसे स्ट्रेट अवे प्लेइंग 11 में खिलाया जाए, क्योंकि आप एक्सपीरियंस पे बैंक करना चाहते हैं। सो इट विल बी अ बिग चैलेंज मेरे हिसाब से। लुकिंग एट द सिनेरियो, अगर मैं वहाँ पे होता तो मेरे पास जहन में यही बात चल रही होती कि मैं यंग लड़कों के साथ जाऊँ या एक्सपीरियंस के साथ जाऊँ, क्योंकि पहला टेस्ट मैच हार चुके हैं। यही सिचुएशन अगर आप 3-0 से आगे हो, 2-1 से आगे हो, या आपको पता है कि यहाँ से आप सीरीज नहीं हार सकते, यहाँ पे सीरीज जीत चुके हैं, तो वहाँ पे मैं कहूँगा कि यार हाँ, यंग लड़कों को बिल्कुल मौका दिया जाए, उन्हें खिलाया जाए। लेकिन फिर भी आप थोड़ी देर और श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल को बैक करना चाहेंगे, इसलिए क्योंकि श्रेयस अय्यर ने
ज़रूर पिछले कुछ समय से रन नहीं बनाए, शुभमन गिल ने रन नहीं बनाए, लेकिन इनके पास वो पोटेंशियल है और वो एक्सपीरियंस है जो कई सालों का खेलने का आपका एक्सपीरियंस आता है, जो क्रंच सिचुएशन में काम आता है। तो मैं पर्सनली अभी और थोड़ी देर और बैक करूंगा, जस्ट बिकॉज 3 या 4 एक्सपीरियंस खिलाड़ी अभी टीम में नहीं है। थैंक यू। और एक्चुअली हमारा सवाल है खान साहब सही है कि एक खेलना होता है कि टीम में रह के खेलना, फिर एक रिटायरमेंट के बाद खेलने में क्या फ़र्क है? थोड़ा ज़्यादा इंजॉयमेंट हो जाता है, थोड़ा ज़्यादा आप रिलैक्स रहते हैं, आप यही कोशिश करते हैं कि भाई आप जो आपकी स्किल थी पूरी ज़िंदगी भर जो आपके साथ रही है उसको मैदान में लाया जाए। जब आप करंट खिलाड़ी होते हो तो आपके ऊपर हमेशा हर मैच में परफॉर्म करने का बड़ा प्रेशर होता है। वो प्रेशर कुछ हद तक ये जो लेजेंड वाली लीग है उसमें नहीं होता है। यहाँ पे दूसरा प्रेशर होता है अपनी रिस्पेक्ट का, अपनी इज्जत का, कि अपने आपको फिर भी जब आप बॉलिंग कर रहे हैं, आप भले रिटायर हो गए, आपको छक्का नहीं खाना है, आपको आउट नहीं होना है, वो एक अलग तरीके से का प्रेशर है। लेकिन जो करंट खिलाड़ी जो प्रेशर से जाते हैं यार, वो तो अलग ही है, क्योंकि वो तो रोजी रोटी का सवाल हो जाता है। इरफान भाई, मेरा सवाल आपसे है। सरफराज खान ने सब कुछ कर लिया, 100 भी कर लिया, 200 भी कर लिया, 300 भी कर लिया, अब जाके उसे इंग्लैंड में मौका मिला है, तो क्या आपको लगता है उसको खिलाएंगे इस मैच में? देखिए, वो तो सबसे पहले तो मुबारकबाद सरफराज खान को कि डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत परफॉर्म करने के बाद वो मौका मिला है, और ये एक छोटी सी जीत है हर वो खिलाड़ी के लिए जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहा है और लगातार रन बना रहा है, क्योंकि उस पर इम्पोर्टेंस, उस पर तवज्जो देना बेहद ज़रूरी है। और जब वो सिलेक्ट हुआ तो मुझे जाहिर सी बात है बड़ी खुशी हुई, सिर्फ उसी के लिए नहीं, सौरभ के लिए भी बड़ी खुशी हुई, क्योंकि उसने भी डोमेस्टिक क्रिकेट में बहुत साल परफॉर्म किया है। तो जब ऐसे लड़के सिलेक्ट होते हैं तो आपको एक खुशी होती ज़रूर है। लेकिन जब प्लेइंग 11 की बात आती है, जैसे मैंने पहले जवाब दिया आपको कि इतना आसान होगा नहीं टीम मैनेजमेंट के लिए डिसीजन लेना। आप चाहते हैं कि प्लेइंग 11 का हिस्सा किसी यंग खिलाड़ी को बनाए जो एक लेवल ऊपर आए डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के, इंडिया ए क्रिकेट खेल के। अब यहाँ पे सिचुएशन जो है वो सिचुएशन अगले मैच का कॉम्बिनेशन बनाने की है। मुश्किल काम रहेगा जाते ही एकदम से मौका मिलना, क्योंकि जो पहले टीम में आया हो तो उसकी जगह पहले बनती है। रजत पाटीदार उनसे पहले आए तो हो सकता है कि उनकी जगह बन जाए अगर प्लेइंग 11 में जगह बनती है, वरना एक कॉम्बिनेशन बनाना एक सरदर्द का काम रहेगा अगले मैच में। आप मैच हार भी चुके हैं और आपको अगला मैच जीतना भी, और सीरीज़ नहीं हारना है। इंडिया में सीरीज़ बहुत हम इम्पोर्टेंस उसे नहीं देते अनफॉर्चुनेटली, लेकिन हम ये एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि हम सीरीज़ हार सकते हैं इंडिया में। तो एक अलग लेवल के दबाव से गुजरेगी टीम मैनेजमेंट और भारतीय टीम। तो इसी वजह से मुझे लगता है एक्सपीरियंस को पहले बैंक करेंगे, लेकिन ये बड़ी सीरीज़ है। अच्छी बात ये कि 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ नहीं है, ये 5 टेस्ट मैच की सीरीज़। तो यहाँ पे आपको मौके मिलने के आगे चांसेस ज़रूर रहेंगे। अच्छा रहेगा थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिले दोनों खिलाड़ियों को, जो नए खिलाड़ी आए हैं, और एक ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, थोड़ा सा एडजस्ट हो गए और उसके बाद मौका मिले तो फिर हो सकता है कि अच्छे से खुल के परफॉर्म भी कर पाए। This was the last question, I guess. We can take one more. देखिए, अंडर 19 में ना मेरी बहुत रुचि रही है अंडर 19 क्रिकेट के लिए, और मैं लगातार फॉलो कर रहा हूँ। और लकीली मैं फॉर्चुनेट हूँ कि ये जो अभी अंडर 19 टीम इंडिया की जो टीम गई हुई है वर्ल्ड कप खेलने के लिए, उन लड़कों के साथ मैंने करीबन 2 हफ्ता बिताया है। अब जब NC में मैं कोचिंग कोर्स करने गया था तो वहाँ पे उनके साथ वक्त बिताया था, जहाँ पे मुशीर थे, अर्शिन कुलकर्णी थे और राज लिम्बानी, और ये सारे खिलाड़ी वहाँ पे थे, और प्रियांशु मूलिया। ये 4-5 खिलाड़ी जो मैंने आपके नाम लिए, ये बड़े एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं। मुशीर ने तो कमाल के वो शतक लगाया, अभी हाल ही में कल ही न्यूजीलैंड के खिलाफ वो शतक लगाया, कमाल की बल्लेबाजी की। और जिस तरह से राज लिम्बानी गेंदबाजी कर रहे हैं, मैं उनके फ्यूचर को लेके बहुत एक्साइटेड हूँ। अर्शिन कुलकर्णी एक ऐसा ऑलराउंडर बन सकता है आगे जाके, जो तेज़ बॉलिंग में, फास्ट बॉलिंग में एक अच्छा अपना नाम बना सकता है, क्योंकि वो बैट्समैन है लेकिन फास्ट बॉलिंग करते, लंबे कद के, लगभग मेरे से थोड़ी ज़्यादा हाइट है उनकी, अभी 19 साल के बच्चे। लेकिन तो ये बहुत एक्साइटिंग खिलाड़ी हैं और इनके फ्यूचर को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। और मुझे यकीन है कि इंडियन टीम वर्ल्ड कप जीत के आएगी, क्योंकि तगड़ी टीम है, मजबूत टीम है, अच्छा उनके पास सपोर्ट स्टाफ भी है, और उसमें परफॉर्म करने वाले, कंसिस्टेंट परफॉर्म करने वाले खिलाड़ी मौजूद है। अभी मुशीर का जो आपने सवाल पूछा,
जो कंसिस्टेंसी दिखाई है वर्ल्ड कप में काबिल तारीफ है। और मुझे तो ये लगता है कि उनके पास जो रेंज है बैटिंग की वो सरफराज से भी थोड़ी ज़्यादा सामने की तरफ है। सरफराज जो है वो स्क्वायर बहुत अच्छा खेलते हैं, लेकिन मुशीर के पास सामने खेलने की काबिलियत भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। दोनों अपने लेवल पे एक अच्छे खिलाड़ी हैं। और अर्शिन के पास ताकत है, ऑलराउंडर एबिलिटी है, राज लिम्बानी के पास स्विंग है और एक ऐसी बॉलिंग करते हैं वो जिनके पास एक अच्छी एक्शन है जिससे वो स्विंग करने में उन्हें गेंदबाजी में बड़ा फ़ायदा होता है। सो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, लेकिन ये 4-5 खिलाड़ी हैं जिनके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि वो फ्यूचर में क्या कमाल करते हैं। तो ये बताया नहीं कहाँ कहाँ खेल होगा, किस किस स्टेट्स में होगा, ये डिटेल नहीं बताया आपने। ये खेल कहाँ होगा एक्चुअली में, ये मतलब चेतन किसकी बात करें आप? ये Where this matches is likely to be played? ये एशियन कंट्री में होगा, बहुत जल्दी आपको हम बता देंगे क्योंकि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, तो वी हैव टू सी द फिजिबिलिटीज। तो बहुत जल्दी आप तक ये हम प्रेस रिलीज में वी विल लेट यू नो वेयर द टूर्नामेंट विल बी प्लेड।